we are trying to solve, right? For example, let's say, yeah. So before starting any software development, first we have to understand what we are trying to solve, right? In your case, like you can think any example, like अगर आप एक we are developing any university software. So what you can think in your mind, like what the software you are trying to solve, right? For example, you want to develop a software that maintain a record of your student, for example, right? And there you want to maintain academics related details or attendance related details, right? So you have to think that problem what you are trying to solve, right? So first you have the problem, so you have to think all the details of that problem. Next is like the system. What is system here? System is like what the infrastructure we are going to use in your software. That's the system. And the next is evolution. Evolution is come at the stage after your system is developed and is from the market, right? So and once you get any feedback from the market, then you have to evolve it. So that's a thing. So I make that slide in the research specific only, so you get some you can relate it as well. So as I got a mail like lots of from here as from the so I make it like in that way. So research fellows also there, right? So you can relate like anyone is from research team. I mean anyone is doing as a student or doing a research. So in this topic you are doing, can you explain? Sure. Okay. So you are from research, right? So machine learning, right? So can you help me to understand what you are trying to solve after क्या topic है, so I can help you to understand that in that way as well. Basically you understand the basic things कि आप data के साथ कैसे work करते हैं, right? So that comes under the research. So I can relate in that way. So before developing any product, you have one product as a research product, right? So you know like how the data in the real world, right? Real world में data कैसा होता है? All are very noisy data, right? So you have first thing you have to keep in your mind like you collect all the information that you are going to develop, right? And then the next step of the building any software, like that you have to first develop any prototype. Prototype means like the small part that proves that concept, right? And the next you have to move to the production. So this is a pre-building job. Next problem, you have problem definition framework. Like first you have to choose like from whom you are going to your target audience आपको clear होना चाहिए, right? टारगेट ऑडियंस कौन है, राइट? फॉर एग्जांपल आप अपने देश में आप बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल, राइट? इंडस्ट्रियल का कोई यूज केस आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम की टारगेट ऑडियंस क्या है. एंड नेक्स्ट स्टेप यू नो ऑल द प्रॉब्लम्स, राइट? क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, यू हैव टू लिस्ट डाउन. क्या पेन पॉइंट्स होने वाले हैं, यू हैव टू लिस्ट डाउन, राइट? देन व्हाई यू आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, देन शुड बी लाइक इज इट रियली हेल्प टू द पीपल, राइट? So the value of solving that is, right, why you are solving that problem, and next you have to collect all the what the sources data you have. For your case like data हो सकते हैं कि इंडस्ट्री के केस में हो सकता है कोई मशीनरी से रिलेटेड ये डेटा यू हैव, राइट? तो आप उसके डेटा को पहले कलेक्ट करेंगे, एक्सेल फॉर्मेट में होगा. नेक्स्ट Python script you will manipulate it and filter it out, noisy data को remove करना, right? All
मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो फर्स्ट यू शुड नो द टारगेट ऑडियंस, ताकि जब आप उसको पब्लिश करें तो यू कैन रीच दैट, राइट। तो नेक्स्ट होता है आपका प्रॉब्लम, लाइक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, राइट। इसके लिए व्हाई वी आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, डेटा, फिर सॉल्यूशन एंड मेथड। तो ठीक है, एनी क्वेश्चन? So before moving to the requirement category, so first there is two part of the functional requirement strategy. So you should know that what is functional and the non-functional requirement. ठीक है, तो मैं इसको ऐसा थोड़ा, so functional and non-functional को समझते हैं ये क्या होता है बेसिकली। फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है व्हाट डज द सिस्टम डू। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी एग्जाम्पल मैंने जो आपको कॉलेज के कंटेक्ट में बताया कि आप एक कॉलेज को सॉफ्टवेयर डेवलप करें, राइट। इन विच यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ योर स्टूडेंट, अटेंडेंस मेंटेन करने वाले, तो आप वो बेसिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। उसमें बेसिकली स्टार्ट होगा एक लॉगिन प्रोसेस, राइट। उसमें आप नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप एक मास्टर टेबल बनाएंगे, जिसमें हो सकता है कि पूरे स्टूडेंट के रिकॉर्ड आप कैसे मेंटेन करोगे डैशबोर्ड में, राइट। उसके बाद आप फैकल्टी के रिलेटेड डिटेल्स बनाएंगे, राइट। तो जितने फंक्शनल रिक्वायरमेंट है यू हैव टू लिस्ट इट फर्स्ट, राइट। तो दो तीन तरह का फंक्शनल रिक्वायरमेंट। So is functional requirement clear to everyone? So next is the non-functional requirement. तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है कि हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी लाइक, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सर्वर्स कैसे मैनेज कर रहे हैं, राइट। उसके सिक्योरिटी मेजर्स आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, राइट। दोज आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो डेवलपमेंट मैथोडोलॉजी होते हैं कौन से सॉफ्टवेयर साइकिल में, बेसिकली these are the few methodology that most of the these are the methodology that industry follows, like the waterfall model होता है, agile methodology होता है, scrum, kanban, DevOps। तो अब इसमें like development methodologies में आप it depend upon the which type of project you choose, so you have to तो फिर चला गया, देखो ये बार बार ऐसे हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक करो ना। so here like this is the methodology. भाविका, ये जो दे रही हो तो इसको करना क्या, थोड़ा बता दो हमें। बताओगे? हाँ, बातें बताना। वापस आ जाएंगे 1 बजे। तू बोला तो यही यही आना है। बढ़िया। ठीक, बढ़िया। लिखा है, लेकिन आप जो 7 years में आप सीखे वही आपको लिखना है, समराइज करना है।
इस सब में तो आपको पेमेंट भी बहुत, अगर आप हाई लेवल का चाहिए तो पेमेंट Sorry for so here like we are discussing about the development methodology. So I think this is more technical. So I think let's do something कि थोड़ा इंटरेक्टिव भी हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि this is more technical और आपको थोड़ा ऊपर से जाएगा. तो ऐसा करते हैं कि we'll pick any problem right each department से, ठीक है? So I will try to give an answer in that way, so you can use that part in a daily basis. आपको भी हेल्प हो जाए कि आप अपने डेली चैलेंजेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, राइट, जो आप डेली बेसिस हो रहा हो और जो कि आज के एआई के वर्ल्ड में वी कैन सॉल्व इट क्विकली. अगर मैं कोई डिपार्टमेंट वाइज अगर आपसे पूछूं कि डेली आप ऐसा कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो, यू कैन गिव मी एनी चैलेंज, बताएंगे आपको? मतलब कोई भी आप डेली पढ़ाने में या फिर नोट्स बनाने में, राइट, एनीथिंग. आप स्टूडेंट बेसिकली इसको आपका एक प्रॉब्लम था, मैं उसको रिलेट भी कर पाऊंगा कि दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो तो फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम. सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट आई हैव रेटेड इन माय स्लाइड कि प्रॉब्लम क्या है और किसके लिए सॉल्व करना है, राइट. तो यहाँ आपका प्रॉब्लम है कि आप पहले से सर नोट या वीडियोस प्रिपेयर होता तो यू कैन डिलीवर इट टू योर स्टूडेंट, राइट. तो अब यहाँ पर आपका प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा नाउ इट इज लॉट्स ऑफ एआई. तो उसमें भी बहुत से एआई टूल्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में बहुत अच्छा काम कर रहा है. कोई वीडियो क्रिएशन का अच्छा काम कर रहा है, कोई इमेज जनरेशन का अच्छा काम कर रहा है, कोई आपका डॉक्यूमेंट या फिर आपका टीचिंग मटेरियल रेडी करने के लिए अच्छा काम कर रहा है, राइट. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट आप कोई एक टॉपिक लो, राइट. फर्स्ट आप एक आई थिंक नाउअडेज यू ऑल नो प्रॉम्प्ट्स आर वेरी पॉपुलर कीवर्ड कि आप प्रॉम्प्ट अच्छे you all are familiar of the prompt engine, right? Right. So आप क्या करो, सबसे पहले अपना प्लान को रेडी करो, राइट. तो इन अ प्रॉम्प्ट लाइक देयर इज वन थिंग दैट एमडी फाइल बनाना होता है बेसिकली. तो नॉट श्योर यू आर अवेयर ऑफ एमडी फाइल नॉट. तो आप क्या करो, अपना प्लानिंग को रेडी, राइट. So you can use the first Gemini for the planning. You should use the Perplexity. So I can share that URL as well. See Perplexity means how you plan, right? So you have to just plan कि आपको daily आपको क्या करना है, right? So they will create a complete schedule for the entire month, right? आप पूरे month के लिए आप schedule बना सकते हो अपने student के लिए, आप topic पर. Then what you can do, there is one tool called InVideo, जो कि प्रेजेंटेशन इतना अच्छा बनाएगा बेसिकली, राइट. आप स्टूडेंट्स को डायरेक्ट ऑन रिलेट करा, राइट. यू कैन राइट वीडियो. मतलब मैं जो बता रहा हूँ पूरा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि लाइक व्हाट द टूल इज बेस्ट फॉर यू. So first you use the let me open that one. So it's a perplexity.ai, ठीक है. So that helps you to give a complete planning, ठीक है. आप अपने टॉपिक को यहाँ प्लान करो, ठीक है. तो यहाँ से प्लान करने के बाद then you should create a one handle कि आपका डेली जो आपका डे वाइज जो आपका ये प्लानिंग निकलता है, ठीक है. तो यू फर्स्ट प्लान इट हियर,
So here you can write your prompt. Like for example, bio, what's your बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स यहाँ पर एक कोई टॉपिक आप जो भी डेली बेसिस पे पढ़ाना चाह रहे हैं एग्जैक्ट यू शुड फर्स्ट चूज हियर और यहाँ पर आप उसको बोलो कि आप डेली मुझे एक डे वाइज क्रिएट मी अ सेट, ठीक है, एंड पोस्ट अप योर डिटेल्स, देन व्हाटएवर द शेड्यूल यू गॉट इट, देन यू कैन गो टू द इन वीडियो। एक एग्जांपल बोलो ना। हाँ बताओ। एक एग्जांपल बोलो। Just like tell stories for प्रैक्टिकल भी बोलो। You can create a complete month set, right? Biotechnology. What's the topic? हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन वगैरह का प्रैक्टिकल में ना, प्रैक्टिकल में, हाँ, तो वो उससे आरबीसी करते होगे ना काउंटिंग। हाँ, you can schedule it. गूगल में नहीं जाना है। गूगल में जाने की जरूरत अच्छा, है। तो परप्लेक्सिटी डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं, इट्स जस्ट अ वेबसाइट। आप वेबसाइट ओपन करेंगे perplexity.ai, इससे ऐप भी आता है, ठीक है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आई थिंक सब्सक्रिप्शन प्लान एयरटेल में फ्री भी देता है। आई थिंक यू कैन डायरेक्ट थोड़ा वहाँ हम एक बार बैक जाएंगे तो हम समझ पाएंगे। नाम दीजिए। हाँ, बेसिकली ये जो टूल है ना, बेसिकली रिसर्च टॉपिक के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बेसिकली अगर आप रिसर्च रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट टूल इफ यू वांट टू यूज। बैक जाके इसको परप्लेक्सिटी क्या है? ओके, ठीक है, लॉगिन करके परप्लेक्सिटी, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन, perplexity.ai, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि टॉपिक जैसे आप सेल स्ट्रक्चर के बारे में बोलेंगे। हाँ सर, कर कोई सेल स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन करो तो समझ में आएगा। Can you create complete course for cell structure? So here I can just say, can you read? साइन इन आ रहा है। नहीं, इनका ही है। ये पेड है क्या? ये भी पेड है क्या? आपका काम फ्री में हो जाएगा, बेसिकली बिना टोकन से जाएगा। अच्छा। एक्चुअली पासवर्ड पूछ रहा है आपका सिस्टम को, आपको पासवर्ड डालो फिर सर। हाँ डालो। तो बेसिकली यहाँ पर जब आपको पूरे कोर्स स्ट्रक्चर आ जाएगा तो आप इसको ले जाके इन वीडियो में एक वीडियो बना सकते हैं। अच्छा, एक मिनट बता दो। पासवर्ड डालो। सर ये एयरटेल में फ्री रहता है ना? एयरटेल में एक्चुअली आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन, अगर उसमें प्लान के साथ फिक्स नहीं दिया होगा। वैसे लॉट्स ऑफ टूल है, उसमें ये यूज कर सकते हो, कैमरी में यूज कर सकते हो, लेकिन ये रिसर्च वाइज जो आप लोग को हेल्प करेगा वेबसाइट सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अच्छा रहेगा। हिंदी में भी एक्चुअली बना क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए ये दिस इज क्रिएटिंग योर कंप्लीट कोर्स फॉर द रिलेटेड टू द सेल स्ट्रक्चर, राइट। ये कोर्स ओवरव्यू क्या होगा, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, मॉड्यूल्स
पहला मॉड्यूल आप इंट्रोडक्शन टू सेल्स कर लिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज सेल्स, राइट. सो यू कैन डिजाइन योर कोर्स हियर, राइट. आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है. इवन आफ्टर दैट आप इसको बोलो कि मुझे एक एमडी फाइल बना लो, तो यू कैन डाउनलोड इट एंड गो टू द ई-वीडियो. फिर ई-वीडियो में एक लॉगिन लगेगा, ताकि यहाँ पर आप डायरेक्ट वो टॉपिक का फाइल को यहाँ अपलोड करो. सो यू कैन क्रिएट अ कंप्लीट वीडियो, राइट. सो यू कैन डायरेक्टली रिलेट कि आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप इसलिए आप अपने स्टूडेंट्स को समझा भी सकते हो, ठीक है. सो दैट्स द वन थिंग दैट जो आपको हेल्प करेगा, राइट. सो दिस इज द वन पार्ट दैट वी कैन सॉल्व यूजिंग द एआई एज वेल. नेक्स्ट आई थिंक डाउनलोड करने अगर आपको के इस वीडियो में साउंड बाय डिफॉल्ट इसमें साउंड By default? जो स्क्रिप्ट बन गया है ना, बेसिकली उसका एक इनवॉइस वहाँ रहेगा कि वॉइस बाय डिफॉल्ट साउंड ही प्ले